Hello students, in this video we will be taking 11th English lesson number 1.3. Name of the lesson is The Call of the Soil. It is by Venkat Iyer. I have covered lesson explanation along with the icebreakers and brainstorming in this video. So before we start the explanation part, let me tell you, if you are new to my channel, you can visit my channel for more videos on 11th, 12th English, SSC English, English grammar, writing skill. And if you like my videos, do comment how do you find, share with your friends, and do not forget to subscribe for upcoming videos. So let's start with the lesson. Venkateswaran yani Venkat Iyer, he was born in 1966. Venkateswaran yani Venkat Iyer is a science graduate and a certified project management professional. He last worked with IBM in Mumbai as a project manager for software implementation. After 17 years in the IT industry, he quit in 2004 to live on his organic farm in Pet village in Dahanu Taluka, Palghar district, Maharashtra. अभी ये थे प्रोजेक्ट मैनेजर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, आईटी इंडस्ट्री में काम किया. उसके बाद भी सी हाउ फेट टुक हिम टू फार्मिंग. ही हैज़ गिवन हिज एक्सपीरियंस थ्रू दिस लेसन कि कैसे आईटी में काम करने के बाद भी लाइक हाउ ही हैड अफेक्शन फॉर फार्मिंग एंड वेयर दिस फील्ड लेड हिम टू हाउ ही डेवलप्ड दिस फील्ड. His book Moong Over Microchips traces his transition from a techie to farmer. टेक्निकल पर्सन होके वो फार्मिंग में गया ओवर अ पीरियड ऑफ 15 to 17 years. It was not a career change but a lifestyle change I was looking for. He says about his decision to shift to the quieter environs of a village. Now, why did he switch from techie towards this farming? It's not because of career he is saying, but ऐसे ही उसने क्या किया, उसका डिसीजन हो गया कि कुछ विलेजेस में शांत एनवायरनमेंट मिल रहा है, कुछ चेंज मिल रहा है, लाइफस्टाइल की चेंज है. So he started liking that. He insisted on practicing organic farming from the outset. He was resolute in spite of numerous challenges which he faced. अभी इनको बिना केमिकल वाली जो थी ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर उन्होंने शुरू से ही ध्यान दिया और एकदम रेजोल्यूट डिटरमाइंड थे कि कुछ भी हो जाए वही करना है. टुडे नॉट ओनली does he deliver lectures on organic farming but also has joined hands with organic farmers and NGOs working in the organic field to propagate organic farming to ensure that the land at least is not ravaged while they try to make a living out of agriculture. अभी एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड यूज़ करते हैं केमिकल्स डाल के उसकी सत्यानाश हो जाती है, तो ये चाहते हैं कि वो लैंड ख़राब ना हो, इसकी कोशिश आज दिन तक यही रही है. एग्रीकल्चर के दुनिया में इन्होंने बहुत ही कोशिश की है कि केमिकल्स ना यूज़ हो. सो दिस वाज ऑल अबाउट वेंकट अय्यर. नाउ लेट अस सी व्हाट डज ही से, लाइक हाउ ही स्विच्ड टू दिस वर्क और दिस प्रोफेशन. द कॉल ऑफ द सॉइल, अ सेंट ऑफ राइस. सेंट यानी खुशबू, चावल की खुशबू. द फर्स्ट क्रॉप. इट वॉज अप्रैल 2004. आई स्टूड इन द मिडल ऑफ द लश ग्रीन फील्ड ऑफ मूंग yani green gram and looked around me. It was just before sunrise and the sky was turning a bright orange. The ground was damp and the leaves were shining with dew. My bare feet were muddy as I walked around gingerly inspecting the plants. Gingerly means very cautious. अभी 2004 के अप्रैल मंथ में इस सेलिंग कि एकदम उनका जो ये था फार्म था पूरा लश ग्रीन जो था, ग्रीन कलर किसकी वजह से, क्योंकि मूंग की फसल ग्रो हो गई थी, एकदम राइप हो थी. तो अपने नंगे पैरों से वो उसमें मडी लैंड पे, कीचड़ वाले लैंड पे केयरफुली वो वॉक कर रहे थे और इंस्पेक्ट कर रहे थे कि क्या है. अराउंड मी वर रोज ऑफ चिकू ट्रीज एंड बिलो अ डेंस foliage of मूंग. एट दैट पॉइंट आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर. द मूंग plants not more than 2 feet tall had green pods hanging out. The pods were not yet ripe and there was a light fuzz growing on them. There was still some time before the harvest. I felt exhilarated. Exhilarated यानी very happy and excited. Foliage means leaves of a tree or a plant. अभी उन्होंने जब भी मूंग के ट्रीज़, चीकू के ट्रीज़ एंड उसके नीचे जो झाड़ मूंग का देखा, उसमें जो ये थे मूंग के प्लांट एकदम 2 feet टॉल थे और उनमें से पॉड जिसमें से अंदर से दाना निकलता वो हैंग हो रहे थे. तो उन्होंने देखा कि वो पॉट्स अभी तक फुल्ली राइप नहीं थे बट उनके ऊपर लाइट फज ग्रोइंग ऑन देम. फज का मतलब होता है
मास ऑफ फाइबर उनके ऊपर ग्रो हो गया था। तो यानी इसको हार्वेस्टिंग के लिए अभी भी थोड़ा टाइम था, बट उनको बहुत खुशी हुई कि मेरे फार्म में मूंग ग्रो हुए। आई स्टूड वॉचिंग द सन राइज अबव द towering trees across the fence and slowly made my way back to the house, a white structure in the middle of this greenery. I could not believe that I was the owner of this land and that I was looking at my first crop as a farmer. After I had paid the advance money for the land, I thought I would have some time to get familiar with the farming. But Moru Dada, the broker who got us the land, had other ideas. He was keen that we plant moong at once. I was not prepared for this. I was still reading books and trying to figure out what we could sow and how we should go about it. Moru Dada was quite firm. He said the season was right for sowing moong and the best seeds were available in Surat in the adjacent state of Gujarat. अभी मोरू दादा जो एजेंट थे उनके थ्रू उन्होंने ये लैंड लिया था फार्मिंग के लिए। तो राइटर को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतने कम टाइम में मैं इतना अच्छा फार्मर हो जाऊंगा, इतनी अच्छी मूंग की ग्रोथ वहाँ पे हो जाएगी, प्लांट ग्रो होंगे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था। हालांकि उनका खुद का मन नहीं था मूंग ग्रो करने का, पर जो एजेंट जिसने लैंड लेके दिया था मोरू दादा, उन्होंने बोला कि अभी जो सीज़न वो मूंग के लिए अच्छी है। तो उनके कहने पे उन्होंने मूंग के प्लांटेशन की और उन्होंने बोला सूरत जो है, जो कि गुजरात में है, बाजू में ही है, वहाँ से तुमको अच्छी क्वालिटी के मूंग मिल जाएंगे। I made a quick trip to Surat and brought around 10 kilograms of moong. Moru Dada rented his tractor to plow the land and quickly planted moong all over the place. तो ये सूरत गए, वहाँ से 10 किलो मूंग लेके आए, बट उसको सो करने के लिए प्लोइंग की ज़रूरत थी। मोरू दादा ने अपना ट्रैक्टर भी दिया तो उन्होंने मूंग ग्रो कर दिया, मूंग के सीड्स डाल दिए अपने फार्म में। A few days later, we were overjoyed to see tiny green leaves. I had never seen moong growing before and was thrilled at the sight. It was the same thrill I had felt as a young boy when I saw the first of the hibiscus I had planted bloom at the railway quarters in Vinaypale in Mumbai. I was grateful to have taken Moru's advice. अभी राइटर को इतनी खुशी हो रही थी जैसे बचपन में कोई फ्लावर का ट्री प्लांट किया और उसमें से फ्लावर निकला तो कितनी खुशी होती है, हिबिस्कस फ्लावर खिलाता। वैसे ही अभी राइटर को खुशी हो रही थी कि जो रेलवे के क्वार्टर्स विलेपार्ले में मुंबई में जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे उन्होंने ये ग्रो किया और मोरू दादा ने उनको सजेस्ट किया। तो अभी मूंग उसमें ग्रो हो गए तो उनको ही वॉज सक्सेसफुल इन फार्मिंग, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। The next thing Moru Dada wanted to do was spray some pesticides on the plants. He claimed that it would give a higher yield. This was something we did not want to do. We were clear that we would not use any chemicals and tried to explain it to him. He reacted as if we had suggested harakiri. It took a lot of convincing to ensure that Moru Dada and his friends did not use any chemicals on the farm. They refused to understand how crops could grow without sprays. अभी क्रॉप्स तो ग्रो हो गए थे मूंग के, बट मोरू दादा का सजेशन क्या था कि इसके ऊपर स्प्रे करो पेस्टिसाइड का। पेस्टिसाइड यानी कोई जर्म्स वगैरह उस पर जो ये पेस्ट हैं जो प्लांट पे आके ग्रो होते हैं खाने के लिए, वो सब ना आए इसके ऊपर, इन्फेक्ट ना हो प्लांट्स। बट राइटर का कहना था कि नहीं, कोई भी केमिकल्स हम लोग स्प्रे करेंगे तो क्रॉप डैमेज हो जाएगा, तो ही वॉज नॉट इन फेवर। बट मोरू दादा और उसके फ्रेंड का कहना था कि नहीं, अगर तुम नहीं ग्रो करोगे, अगर तुम पेस्टिसाइड नहीं डालोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हराकिरी यानी अपने पेट पे छुरा घोटना, यानी अपना बड़ा नुकसान करना। तो तुम अपने पेट में ही छुरी घोसोगे अगर तुम पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे हो। तो बिना पेस्टिसाइड के तुम्हारे जो प्लांट्स हैं बचेंगे ही नहीं, ग्रो ही नहीं होंगे। बट ये राइटर जो था बस इसी ज़िद पे था कि मुझे केमिकल स्प्रे नहीं करना है। Contrary to what everyone had told us, nature did her job and she needed no bribes to get the work done. Soon it was harvest time and we managed a respectable 300 kilograms, an awful lot of mung and with it a lot of confidence. Now I was certain the land was fertile and that it was possible to grow crops without chemicals. It was a major morale booster. अभी जैसे उन्होंने सोचा था कि बिना केमिकल्स के मैं ग्रो करूँगा, ही वॉज सक्सेसफुल। उसको रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ी नेचर को। 300 किलो उनको मिला, हार्वेस्ट मिला, यानी बहुत सारे मूंग वहाँ पे उनको मिले। तो अभी उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लैंड फर्टाइल है, जो मैंने लैंड ली है वहाँ पे मैं कोई और क्रॉप्स ही ग्रो कर सकता हूँ। इट्स अ वेरी गुड लैंड। और ये जो अच्छे क्रॉप्स ग्रो हो गए मूंग के, तो उनका जो
एंथुसियाज़म बूस्ट हो गया, बूस्टर यानी इंक्रीज़ हो गया, मोरल यानी एंथुसियाज़म, उनको प्रोत्साहन मिला। द सेंट ऑफ राइस, अभी राइस के बारे में, उसके बाद था राइस का, अभी मूंग ग्रो किया, उसके बाद था राइस का बारी। द फर्स्ट ईयर आई वॉज लेट फॉर द राइस ग्रोइंग सीजन एंड हैड टू रिसॉर्ट to growing the GR4 variety that was short term and recommended by agricultural office at Coast Guard। अभी राइटर इज टेलिंग कि पहले साल राइस ग्रो करने में मुझे थोड़ा लेट हो गया तो उसको हार्वेस्टिंग में लेट हो जाएगा, तो उन्होंने क्या वैरायटी GR4 वैरायटी ग्रो किया जो कम टाइम में ये हो जाता है, राइप हो जाता है। The next year we decided that we would start early and try to find some good traditional variety of rice to grow. We had read about traditional varieties of rice and knew that they did not require very high inputs of fertilizers. These varieties were also quite long and resisted pest. We were sure that it was this type of rice that would grow well in our farm where we did not use any chemicals at all. Our previous year's experience and low yield had taught us a lesson that we were sure we would not plant hybrids this year। अभी नेक्स्ट ईयर उन्होंने सोच रखा कि अभी वेल इन एडवांस हम राइस का ग्रो करेंगे जैसे उसको इनफ टाइम मिले, बट उन्होंने सुना था कि कुछ जो है ट्रेडिशनल राइस की वैरायटी रहती है उसको फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और उसकी यील्ड भी हाई होती है, उसको पेस्ट को रेजिस्ट करने का काफ़ी पावर होता है, तो वो भी पेस्टिसाइड भी नहीं डालने पड़ते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ नहीं करने पड़ते हैं और हाई यील्ड भी होता है। बट ये राइटर श्योर थे कि मुझे हाइब्रिड नहीं करना है, हाइब्रिड यानी मिक्सचर ऑफ टू, कुछ उसके साथ मिक्स करके जस्ट बिकॉज यू वांट टू ग्रो गेट एक्सेस ऑफ यील्ड, तो वो हाइब्रिड बोलते हैं उसको, कुछ मिलावट करके और उसकी यील्ड नहीं बढ़ानी है, तो वो अगेंस्ट द हाइब्रिड के। In April 2005, we started to look for a good variety of a traditional rice. It was one of our neighbors in the village, a businessman from Mumbai who owned land, who suggested that we plant a local scented variety of rice. Most of the farmers in and around the village of Pate had switched over to hybrids. The younger generation of farmers thought I was crazy to ask for the Desi variety as they call it. My regular visits to the village around searching for a good traditional variety also did not yield any results and we were almost giving up. अभी राइटर एडमेंट थे कि मुझे हाइब्रिड वैरायटी नहीं चाहिए, बट वहाँ पे देसी सीड्स मिल ही नहीं थे, देसी राइस मिल ही नहीं रहे थे, यानी लोकल जो भी है जिसको ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है। बट उन्होंने बहुत देखा और उनको दूसरे फार्मर को लग रहा था ये पागल है जो ऐसे देसी वैरायटी ढूंढ रहा है, ज़रूरत ही नहीं, हाइब्रिड प्रोड्यूस करेंगे तो पैसा भी अच्छा मिलेगा, यील्ड भी अच्छी मिलेगी। तो राइटर की होप ही चली गई बिकॉज कहीं पे भी उनको देसी वैरायटी मिल नहीं रही थी। आई डिसाइडेड टू गिव इट वन लास्ट ट्राई एंड स्पोक टू दी पबन्स फादर एंड सम अदर एल्डर्स। आफ्टर मैनी मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस दे मेंशन द नेम ऑफ कसबाई। अभी फाइनली उनको मिल गया, बहुत कोशिश करने के बाद बबन्स फादर उन्होंने उनको बताया कि कसबाई करके राइस है जो कि ट्रेडिशनल है, वो ग्रो कर सकते हो। Kasbai is a traditional long-grained rice variety which has a distinct aroma, though much milder than basmati. It's a long-duration crop and most of the older people remembered growing it years ago, but they all shook their heads when I asked them about the seeds and told me that it had disappeared. अभी नाम तो पता चल गया, क्या कसबाई, जो बासमती राइस के जैसे दिखने में ही लगता है, उनके ग्रेन्स बड़े रहते हैं, उनकी खुशबू बहुत होती है, उनको राइप होने में हार्वेस्ट के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है ये क्रॉप को, बट बहुत अच्छे टेस्टी होते हैं। पर उन्होंने जिसको भी पूछा सब ने मुंडी हिला दी कि हमारे पास उसके सीड्स नहीं हैं। हाँ, हम बहुत पहले वो ग्रो करते थे कसबाई राइस, बट अभी हमारे पास उसके सीड्स नहीं हैं क्योंकि उनको हार्वेस्टिंग में बहुत टाइम लगता है, तो हमने वो ग्रो करना ही बंद कर दिया है। द टेल्स ऑफ कसबाई मेड अस मोर डिटरमाइंड टू गेट इट। We decided that if we did manage to get some seeds, this would be a great rice to grow. I thought the government may know something about it. A visit to the agricultural office was enlightening. He had not even heard of this rice variety. अभी राइटर ने कोशिश की कि गवर्नमेंट ऑफिस में शायद मिल जाए, तो वो गवर्नमेंट ऑफिस में गए, एग्रीकल्चर ऑफिस में गया, तो उन लोगों ने तो बोला हमने नाम भी नहीं सुना है कसबाई का कि होता क्या है। He said the villagers were taking me for a ride and there was no rice by this name. उन्होंने तो ऐसे भी बोल दिया कि गांव वाले आपका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कोई राइस होता ही नहीं है। He rattled off the names of a number of latest hybrids and even offered to give me some of the
some of them free of cost for a trial. Cursing myself for wasting time with him, I moved on to the next destination. अभी rattled off यानी टॉक्ड रैबिटली एट लेंथ। जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर फास्ट राइस के नाम बताते गया, काफ़ी सारे जो लेटेस्ट हाइब्रिड वैरायटी है उनके नाम बताते गया। बोले कुछ चाहिए तो हम ट्रायल के लिए फ्री में भी दे सकते हैं, बाकी कस्बाई नहीं मिलेगा, हमने तो सुना भी नहीं है, गांव वाले आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो अभी राइटर जो है नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए ट्राई करने लगे। दिस टाइम इट वॉज द आदिवासी महामंडल एट कासा विच buys rice from the Adivasi villages on behalf of the government. Kasbai did not figure in their files, a good indication why people did not grow it anymore. The market itself did not recognize the rice. So if you grew it, you would not be able to sell it. However, the officer in charge here had more knowledge of rice and did remember Kasbai being sold to him a few years ago. अभी उनको लगा कि आदिवासी जो लोग हैं उनके यहाँ से, उनके विलेजेस में कहीं पे हमको मिल जाएगा, तो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ से अगर जाएंगे तो कस्बाई तो उनको मिला नहीं। पता चला कि वो है अच्छा राइस है, बट वो मार्केट में भी उसको रिकग्निशन नहीं मिलती है, क्योंकि लोगों के अभी दिमाग में से भी उड़ गया है। तो आप मार्केट में देने भी जाओगे तो उसकी नाम किसी ने सुना नहीं है, वो उसको वैल्यू नहीं देंगे। बाकी कस्बा इतना था कि काफ़ी साल पहले वहाँ के लोगों ने बोला कि ग्रो होता था, इतना पता है, एटलीस्ट वो है, एग्जिस्ट करता है, बट उसको अभी कोई रिकग्निशन नहीं है मार्केट में भी। तो आप लेने भी जाओगे तो कोई लेने नहीं जाएगा अगर मार्केट में रखोगे भी तो। So when I in Dhaniwari Bhaban and I started looking for Devu Handa and found a graying old man wearing a cap sitting outside his house on a charpoy. An ex-sarpanch of the village, he had acres of land, a huge house and a large family. After exchanging the usual pleasantries, we came to the topic of Kasbai. Finally, ये क्या आ गए, एक देवू होंडा सरपंच के पास आ गए। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड थी एकर्स में, तो उनके साथ हाई हेलो प्लेजेंटरीज यानी जैसे आप नमस्कार करते हो, एक दूसरे को नाम वगैरह पूछते हो, बेसिक थिंग्स। उसके बाद उन्होंने टॉपिक चालू किया कस्बाई राइस का। The mere mention of Kasbai and Devu Honda drifted into the past. His eyes were turned dreamy, and with a tremble in his voice, he told us how the entire village at one time grew only Kasbai. He said there was a time when people passing our village during lunchtime would be forced to stop and ask for a meal. अभी जैसे ही कस्बाई का नाम लिया तो देवू होंडा जो सरपंच थे उनको पहले की पास्ट की याद आ गई। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे गांव में कभी कस्बाई राइस ग्रो हो जाते थे और जो लोग हमारे गांव से गुजरते थे वो लंच करने के लिए यहाँ पे रुक जाते थे, क्योंकि दे कुडंट रेजिस्ट द टेम्पटेशन दैट एरोमा, उसका खाने के बगैर जा नहीं पाते थे। सच वॉज द एल्योरिंग एरोमा ऑफ कस्बाई। एल्योरिंग यानी अट्रैक्टिव, एरोमा यानी खुशबू। कस्बाई राइस की खुशबू इतनी अच्छी थी कि वो रेजिस्ट नहीं कर पाते थे। द एंटायर एरिया वुड हैव दिस हेडी अरोमा hanging in the air as all the houses cooked the same rice. Today, he said, no one grew Kasbai and everyone had shifted to growing the new hybrid varieties. He claimed he had to force himself to eat this rice that was insipid. Insipid यानी tasteless. सरपंच बता रहे हैं कि पहले हमारे पूरे गांव में हर एक घर में कस्बाई राइस ही बनता था, तो पूरे गांव में से खुशबू आती थी, बट आजकल कोई भी नहीं यूज़ करता है, हर कोई हाइब्रिड वैरायटी पे शिफ्ट हो गया है, कोई नहीं वो ग्रो करता, और हमको भी टेस्टलेस राइस वो खाना ही पड़ता है। विद द एडवेंट ऑफ इरिगेशन फार्मर्स वर टेम्प्टेड टू ग्रो अ सेकंड क्रॉप एंड कस्बाई बीइंग अ लॉन्ग ड्यूरेशन राइस वाज replaced by the shorter duration hybrid so that the harvest could be done earlier. This ensured that the farmers could take up a second crop. अभी क्यों कस्बाई को मूव करके और दूसरे हाइब्रिड वैरायटी ग्रो कर रहे थे? बिकॉज उन्होंने बताया कि क्या है कि कस्बाई लॉन्गर ड्यूरेशन है, हार्वेस्टिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उससे अच्छा अगर हाइब्रिड वैरायटी ग्रो करेंगे तो दूसरा भी क्रॉप ग्रो हो जाता है, वही सेम टाइम में 2 क्रॉप्स बन सकते हैं, हार्वेस्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए सब लोगों ने कस्बाई को छोड़ दिया है। I asked why he had shifted if he was so unhappy with the hybrids. No one forced him to, did they? He smiled and replied that their fields did not have fences, and once the harvest was over, the cattle were released into the fields. If my field alone has kasbai, it will be a treat for the cattle, he explained.
अभी राइटर ने उनको सरपंच को पूछा, अगर आपको दूसरी हाइब्रिड वैरायटी इतनी टेस्टलेस लग रही थी तो आपको किसी ने फोर्स थोड़ी किया था, यू कुड हैव कंटिन्यूड विथ कसबाई, आपने क्यों हाइब्रिड वैरायटी को स्विच ओवर किया? तो बोलते हैं कि हमको फेंस नहीं लगा हुआ है, बाउंड्री नहीं लगी हुई है, तो दूसरों की जब ये हार्वेस्ट हो जाते तो कैटल को छोड़ देते हैं तो हमारा जो अनाज है, हमारे जो राइस है वो खा जाते हैं, तो हम बचा नहीं सकते उसको, तो अभी हमको भी सेम ड्यूरेशन वाला ही ग्रो करना पड़ता है. Sometimes we have to fall in line with the community, he lamented. Hybrids need more water, fertilizers and pesticides. He said that yields were good initially but of late had reduced a lot. Besides, he said that each year they had to increase the quantity of urea and pesticide they used. It was as if the newer hybrids had an insatiable appetite फॉर केमिकल्स. अभी वो बता रहे हैं कि पछता रहा हूँ मैं, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी जो है उसको ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए, ज़्यादा पेस्टिसाइड चाहिए, और दिन ब दिन उनकी भूख जैसे बढ़ती ही जाती है. दे हैव इनसेशिएबल यानी इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई एपेटाइट. उनकी भूख इतनी है कि बढ़ती जा रही है इन चीज़ों के लिए कि लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होगी. ये केमिकल्स और ज़्यादा उनको चाहिए होते हैं. He told us that even when there were flash flood in the 60s, Kasbai had stood its ground. He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the floods had receded. Such was the strength of rice, but look what we have done. He rued. अभी rued यानी पछता रहे हैं, feeling sorrowful. अभी वो बता रहे हैं कि जब भी फ्लड भी आई थी 60s में, तो तभी भी बाकी सब क्रॉप डैमेज हो गए थे, बट ये जो है कसबाई वो एकदम मजबूत ग्राउंड पे खड़ा था. बाकी सब फ्लड में बह गए या कम हो गए, बट इसकी कसबाई की स्ट्रेंथ अच्छी थी कि वो एकदम खड़ा था इतनी हेवी फ्लड्स में भी. एज ही वेंट ऑन रेमिनिसिंग अबाउट द राइज, वी जेंटली गाइडेड हिम बैक टू द रीजन फॉर आवर विजिट, द कसबाई सीड्स. He was sure that there was not a single villager in this area who would have the seeds of kasbai. According to him, the only people who still grew it were the Adivasis in a hamlet at the foothill of the mountains in the next village, Asarwari. We bid farewell to Devuhonda, who lovingly bathed us and said, Mahalakshmi, the local goddess, will give you the seeds of kasbai. अभी वो रेमिनिसिंग यानी रिमेंबरिंग द पास्ट स्टोरी, जो सरपंच देवगौड़ा पास्ट की यादें कर रहे थे, बता रहे थे, तो उन्होंने बता कि और कहीं तो नहीं मिलेंगे, बट एक जगह है जहाँ पे आपको कसबाई सीड्स मिल सकते हैं. वो कौन से? आदिवासी जो फुट हिल पे रहते हैं, माउंटेन के फुट हिल में रहते हैं, छोटे से हैमलेट बस्ती में रहते हैं, वहाँ पे शायद आपको मिल सकते हैं. तो अभी राइटर ने सोचा कि वहाँ पे ट्राई कर रहे थे, और उन्होंने सरपंच ने उनको ब्लेसिंग दिया. In Asarwari village, we asked the Sarpanch to help us as we were not very fluent with the local dialect. He sent his assistant Jeevan with us into the hill. अभी वो गांव की जो लैंग्वेज है, डायलेक्ट यानी वे ऑफ टॉकिंग जो था थोड़ी अलग थी, तो उन्होंने बोला हम गांव वाले से बात नहीं कर पाएंगे, अब हमारी मदद करो. तो सरपंच ने एक आदमी जीवन करके उनको बोला ये आपके साथ चलेगा और बात करने में हेल्प करेगा गांव वालों से, आदिवासी लोगों से. आफ्टर अ हाफ our walk through thick vegetation, crossing numerous streams and ditches and scrambling over rocks and gravel, we reached the sleepy hamlet of Boripada. There were just two ramshackle houses in front of us and we wondered if this was the right place. अभी वहाँ पे जब भी पहुँचे तो ramshackle यानी in a state of severe disrepair, यानी कि बराबर बने हुए घर भी नहीं थे, ऐसे दो घर मिले. A wrinkled old woman sitting before one of the houses looked at us with curiosity. As we approached her, we signaled to Jeevan to ask the crucial question. She muttered in reply and we looked at Jeevan for a quick interpretation. He broke into a smile and informed us that she did have the rice and wanted to know who we were and why we wanted. जब भी एक लेडी जिसके फेस पे पूरे रिंकल्स थे वो दिखी, वो घर के बाहर बैठी हुई थी, तो उन्होंने क्यूरियस होकर उनको पूछा कि आपके पास वो कसबाई राइस है. उन्होंने कुछ जवाब दिया पर राइटर ने समझा नहीं, तो उन्होंने जीवन को पूछा कि वो क्या बोल रही है. तो उन्होंने बोला हाँ वो बोल रही है मेरे पास है, पर पहले आप बताओ आप कौन हो और आपको वो क्यों चाहिए कसबाई राइस के सीड्स. इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क टू कीप अ स्ट्रेट फेस एंड आई हैड टू
controlled a strong desire to hug her. After searching for months, we had found the elusive kasbai. We explained to her that we were from Pet nearby and we needed the seeds to grow it. We asked for 10 kilograms of rice. She muttered and scowled. Jeevan interpreted that she had never heard of Pet village and also did not have a weighing scale. She was willing to give the seeds only in baskets. We asked for a single basket of rice and Jeevan told us to pay her something. I handed over 100 rupee note and for the first time in the last 10 minutes her face broke into a smile. She nodded her head in approval. अभी वो लेडी के जो था उसके पास चावल तो थे पर उसके पास वेइंग मशीन भी नहीं थी. राइटर वॉज वेरी हैप्पी कि फाइनली इतनी कोशिश करने के बाद चावल मिले तो सही. उसने बोला कि 10 किलो दे दो, तो वो बोली मेरे पास तो वेइंग मशीन नहीं है, जितनी बास्केट भर के चाहिए उतना मैं दे सकती हूँ. तो एक बास्केट लोगों ने ख़रीदी और जीवन ने राइटर को बोला कि कुछ पैसे इसको दे दो. तो राइटर ने इसको 100 रुपये का नोट दे दिया और लेडी के मुंह पे एकदम स्माइल सी आ गई, बहुत खुश हो गई. जो डिस्टर्ब दिख रही थी पहले कि ये लोग क्यों लेने आए हैं, अभी शी वॉज़ वेरी हैप्पी टू गेट 100 रुपी. As we walked back against the fading sunset, leaving behind a smiling old lady, I couldn't help but wonder that there, nestling in the foothills of an unknown mountain away from the hustle and bustle of the road or the city, were the real people of India. हसल एंड बसल यानी शोरगुल. राइटर को लग रहा था कि ये हम लोग जहाँ पे रहते हैं एकदम शोरगुल वाली एरिया से, कैसे इतना दूर भी माउंटेन के फुटिल पे ऐसे लोग रहते हैं एकदम शांत जगह पे, अवे फ्रॉम द नॉलेज ऑफ अदर पीपल, कैसे ये लोग रहते हैं. These were the people who still held on to the rich biodiversity of our land and no one even cared about them. यही लोग हैं जो केयर करते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, लैंड के लिए, बट इनके लिए कोई बॉदर नहीं करता. They had never heard of hybrids, fertilizers or pesticides. They just grew their rice and ate what they got. The old lady we met had probably never left Boripada. Her world was unspoiled by progress and for once I was grateful to them. वो वहाँ से ये जो लोग हैं उनको तो पता भी नहीं था हाइब्रिड क्या है, फर्टिलाइज़र क्या है, पेस्टिसाइड क्या है. वो तो नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और दुनिया से एकदम दूर हैं. वो तो लेडी शायद बोरीपाड़ा से बाहर भी कहीं नहीं गई होगी, उसको तो पता ही नहीं प्रोग्रेस, तरक्की क्या है, कैसे आगे बढ़ना है. बट एनीवे राइटर सेज आई वॉज हैप्पी कि मुझे वो राइस का वैरायटी मिल गया, बस ही वॉज वेरी हैप्पी. सो दिस इज़ वॉट ही हैज़ शेयर्ड थ्रू दिस lesson. I hope you understood the lesson well. Now let me help you with the icebreakers and brainstorming of the lesson. Icebreakers at the starting of the lesson we have discuss the following with your partner and complete the following sentence. One is done for you. Students, you can take the screenshot or you can pause and have a look because otherwise video will become very long. You can try to solve the answers on your own and then you can compare. Rice varieties available at my grocer's shop. You have tried and find out from your grandparents or parents names of vegetables and fruits they had eaten. आपके जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स है वो कौन से तरह के वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाते थे, उनकी शेप कैसी थी, कलर कैसी थी. ये जो है डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. तो आप अपने पेरेंट्स को पूछ के यहाँ पे लिख सकते हो. आई हैव गिवन 1 or 2 फॉर यू. कन्वेंशनल फार्मिंग यानी जो चलती आ रही है सदियों से वो, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये जो अभी चल रही है, तो उन दोनों में क्या फ़र्क है. केमिकल वाली, इसमें नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं, तो क्या दोनों में फ़र्क है वो आपको यहाँ पे लिखना है. Then we have brainstorming, which is after the lesson. Okay, you have to tell true or false. If the sentence is incorrect, then you have to correct it. So I have already written here. You can copy the answer. This is wrong. This is wrong. Okay, and I have given. He was successful. Not succeeded. No, he was successful. Growing in abundance is more important. No, false. Quantity of crop is more important than growing. So I have written the answer. Rest all these are correct. Complete the flow chart. Consider this to be an example of note making. कि अप्रैल 2005 स्टार्टेड इज सर्च फॉर कसबाई, तो उनकी जर्नी कैसे रही वो आपको इसमें फ्लो चार्ट में लिखना है. राइटर की जर्नी कैसे रही. आई हैव रिटन, यू कैन रीड इट.
देन यू हैव रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वन इज़ डन फॉर यू। इसमें डालना, जैसे ऑर्गेनिक मूंग, मोरू दादा वांटेड टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन द मूंग क्रॉप। तो इसे आपको लेसन में से वो वर्ड्स डाल के लिखना है टू फिल इन द ब्लैंक्स। Okay, list the reactions of the agriculture officer to the authority inquiry about Kasbai rice seeds, one is done for you। एक आपको दिया है, उसने उनकी एग्रीकल्चर ऑफिस में इंक्वायरी करने के बाद उसको क्या पता चला, जैसे ही हैड नॉट हर्ड ऑफ कसबाई, ही फेल्ट दैट विलेजर्स वर फॉलोइंग ऑफ द ऑथर, ही मेंशन द नेम्स ऑफ लेटेस्ट हाइब्रिड्स, उसको पूरा लिस्ट बताया था। तो वो आपको लिखना है कैसी उसकी रिएक्शन थी। गो थ्रू द टेक्स्ट वंस अगेन एंड नोट डाउन देवू होंडाज fond memories of Kasbai in your exercise book, one is done for you। Devu Honda has found memories of Kasbai, they are as follows। It needs no protection from rain, it has an alluring aroma, यानी खुशबू होती है अट्रैक्टिव करने वाली। It has no hunger for chemicals like fertilizers and pesticide। उन्होंने क्या बताया कसबाई के बारे में। The writer says he grew an awful lot of mung। Explain the word awful in this sentence। Here awful means large amount। The word scent in different form from its synonym aroma and fragrance। अभी scent का मतलब भी खुशबू होता है, aroma का मतलब fragrance का मतलब perfume का मतलब खुशबू होता है। Explain how the word scent in the subtitle scent of the rice has a deeper meaning than perfume or fragrance। Tick the phrases having a similar meaning। अभी यहाँ पे scent का मतलब है it denotes tracing of smell, तो उसके related words आपको इन चारों में से बताना है, 5 में से। तो इसका सिमिलर मीनिंग वाला है इन परस्यूट ऑफ, ऑन द ट्रेल ऑफ। सेंट का सिमिलर मीनिंग वाला ये है। ओके, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो है यू हैव टू टेल, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो इट इज़ कंपाउंड सेंटेंस, नो कंजक्शन तो देन इट इज़ सिंपल सेंटेंस, देन इफ देयर इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देन इट इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। सो फॉर दिस इफ यू वांट डिटेल एक्सप्लेनेशन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आई हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस वेयर इन आई हैव शोन कोऑर्डिनेटर, सबऑर्डिनेटर, कैसे वो क्या होता है एंड हाउ सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड। So you can go to playlist and you will find an English grammar, simple, complex and compound sentence. Otherwise I can put it in the description box for your ready reference. Then afterwards you write it on your own. Then we have write a short paragraph in about 120 words to be used as counter view for the following topic। Buy a bigger cloth for your coat। अपनी कोट के लिए बड़ा कपड़ा लो। पहले कैसे बोलते थे कि जितना कपड़ा है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करो, बट अभी क्या, बाई अ बिगर क्लॉथ, बड़ा कोट चाहिए, बड़ा कपड़ा लो। तो व्यू सेक्शन इज गिवन टू यू, यू हैव टू राइट द काउंटर व्यू। आई हैव रिटन द आंसर फॉर यू हियर, काउंटर व्यू। Then we have view, counter view, but you have to write in the tabular form। Organic farming is the need of the time। Write your views in favor and against the statement। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फेवर में और इसके अगेंस्ट में आपको लिखना है, तो वो दोनों मैंने लिखी है, यू कैन रीड इट। सो दिस completes your lesson along with the activities। I hope this was useful to you। Thank you for watching this video।